not comfortable with the job anymore and I was planning कि I want to start my own business. तो उसके बाद से मेरे दिमाग में वो आया कुछ करना है but I don't have any idea. What were the other options that you explored? I explored multiple business. Basically it was not by choice, it was by destiny. तो मैं सोचता था यार ये इतनी क्रिएटिव चीज़ है, लोग बाहर एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? How did you even in the first place decided that I will also give you service? So I was always that kind of person जिसको पता है कि कस्टमर सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या चाहता है, उसको किस टाइप की चीज़ें चाहिए. When you actually announced, Papa, Mama, I'm gonna do a business into hemp, in brackets, it is bhang. What was that reaction? Like, They were not aware about कि like इससे कुछ प्रोडक्ट बनते भी है कि यार ये तो नशे है, ये नशे के चक्कर में पड़ने वाला है, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला. कुछ मेरे इंटर्न्स ने खुद की हेम्प कंपनीज भी स्टार्ट कर दी. from internship directly to an entrepreneurial एंटरप्रेन्योर जर्नी. journey. A moment that you felt like giving up. Welcome to Unmapped Journeys, a place where we go deeper into conversations with our guests around their careers. I'm happy to share a new series by the name of Beyond the Map, where we uncover the entrepreneurial journeys of our guests, who are some of those founders who have had the grit, the resilience, and the empathy to crack the code of entrepreneurship. Today's guest is someone very special, someone who has cracked the code of entrepreneurship, not by being supported by entrepreneurs, but by being creating a system, an ecosystem around a product that has always been a very strong taboo in the Indian market. I have with me the founder of Indian Hemp Store, Mr. Siddharth Gupta. Welcome, Siddharth. Hi. I'm so glad to have you here. Same here, Sachin. Thank you. So let's start with this first point that I was curious about, and my audience would also like to know about is what is the origin story of Siddharth? Where is he coming from? What's the background? So my journey started from UPS. I completed my post-graduation in MBA in Supply Chain Management. And then my first company was Flipkart when I joined. So I was an operations manager there and I was handling almost 100 plus delivery executives there in the Bangalore location. So my e-commerce journey started from Flipkart itself. Then I joined ITC as well and I worked with Amazon also. Then later stage, I was, not comfortable with the job anymore and I was planning कि I want to start my own business. तो उसके बाद से मेरे दिमाग में वो आया कि कुछ करना है but I don't have any idea what to do. So when I quit my job, I went to my hometown back to Gwalior and then I was planning for Himachal trip with one of my friend. So हम लोग ऐसे ही हिमाचल के लिए निकले. We went to Kasol. So Kasol is also known as mini Israel of India. And Kasol में हमने पहली बार मार्केट में हेम्प के बैग्स देखे थे. एंड उस टाइम हम लोगों को क्लिक किया यार कि हम लोगों ने हेम्प को, जिसको हम भांग बोलते हैं, हमने इसको एक नशे के तौर पे देखा हमेशा से. बट कभी भी ये नहीं पता था कि यार इससे कुछ इंडस्ट्रियल और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं. एंड देन वी केम टू नो कि इससे तो ऑलमोस्ट 25,000 प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो. एंड वी फेल्ट अमेज्ड यार इससे इतने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं एंड स्टिल पीपल थिंक दैट दिस इज ओनली अ फॉर्म ऑफ ड्रग. और देन वी रियलाइज कि इसके ऊपर और एक्सप्लोर करना ज़रूरी है एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड एवरीवन. सो हमें जब वहाँ के लोकल विलेजर्स से हमने बात किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे तो मतलब हेम्प को अपना एपेटाइट के तौर पे भी लेते हैं लोग. इवन इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. एपेटाइट तो दे कंज्यूम दिस एज अ फूड एंड ये लोग भांग की चटनी बनाते हैं उसकी. एंड वो चटनी बेसिकली क्या करती है कि आपको एक तो वार्म रखती है, सेकेंड थिंग इज इट विल बी ऑफ ओमेगाज एंड फाइबर. तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रहती है. एंड इसीलिए पहाड़ी लोग हम देखते हैं कि पहाड़ी लोग फिट रहते हैं काफ़ी. तो और उसी के पेड़ से वो फाइबर बनाते थे और बैग्स बनाते थे उससे, और वही लोकल मार्केट में सेल होते थे और काफ़ी टूरिस्ट उससे अट्रैक्ट होते थे. तो हम लोग को भी ये काफ़ी एक्साइटिंग लगा. बट हमने देखा ये इंडिया में ये चीज़ कमर्शियली तो बिकती नहीं है. ये दिस इज़ ओनली विद द माउंटेन कि हाँ ये माउंटेन पे मिल रहा है प्रोडक्ट, बट अगर मैं लोकल कहीं शॉप पे देखूँ तो मुझे कहीं प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. So then I started more researching on Google and everything. Then I came to know कि नेपाल में इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अभी और इंडिया में अभी इसकी पॉलिसी नहीं आई है. So I went to नेपाल. मैंने नेपाल में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. वहाँ पे मैंने देखा कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बाकी आपके हांगकॉन्ग, चाइना से भी लोग आ रहे हैं, इवन फ्रॉम इजिप्ट, दोज काइंड ऑफ कंट्रीज़. और वहाँ पे ये लोग हेम्प के प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, नॉट जस्ट बैग्स, इवन कॉस्मेटिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो.
सो मुझे काफ़ी अमेज फील हुआ कि लाइक इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में क्यों नहीं है। वेयर भांग तो हमारे यहाँ इतने वाइडली कल्टिवेट होता है, हर जगह उगता है भांग, कहीं पे भी उग जाता है। तो क्यों उस पेड़ को हम सिर्फ एक ड्रग के फॉर्म में देख रहे हैं, और क्यों इंडिया इसके इतने पीछे है, बाकी जो हमारे छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इतना अच्छा कर रही है। एंड आज का टाइम है जहाँ नेपाल की इकनॉमी काफ़ी कुछ हेम्प पे ही डिपेंडेंट है, जहाँ पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हेम्प पे हो रहा है। सो That's amazing. I didn't know about that. यस, मेरे को भी जब मैंने सुना फर्स्ट टाइम तो मुझे भी बहुत अमेज फील हुआ। एंड वी बॉट फर्स्ट लॉट ऑफ हैम बैग्स फ्रॉम नेपाल इन 2017। एंड हम लोगों ने अमेजोन पे बेचने के ट्राई किया कि लेट्स सेल ऑन अमेजोन, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है कस्टमर्स का। सो इन जस्ट 4 months द एंटायर स्टॉक गॉट सोल्ड आउट। बट द प्रॉब्लम वॉज कि कस्टमर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, सब पॉजिटिव था, पीपल आर लविंग द प्रोडक्ट्स। बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि सप्लाई चेन बहुत डिफिकल्ट थी। नेपाल से यहाँ लाना, वो कॉस्ट बियर करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस कस्टम्स का देखना, वो सब चीज़ें वो बहुत टिपिकल था हम लोगों के लिए। सो देन वी रियलाइज कि यार, और खासकर सिर्फ और सिर्फ हमें बैक कैटेगरी में नहीं आना था। वी वॉन्ट टू टेक दिस एज अ होल इंडस्ट्री कि यार इससे तो बहुत बड़ी 25,000 प्रोडक्ट इज़ अ बिग मार्केट, मीन्स आप हर कैटेगरी के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, ये इंसान की एक बेसिक नीड्स होती है जो कि भांग से फुलफिल हो सकती है। तो क्यों नहीं इस पेड़ को हर एक तरीके के डाइवर्जन में लेके आके हर एक टाइप की इंडस्ट्री को केटर करके इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाए। एंड देन फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर और रिसर्च करते हैं इंडिया में। एंड वी स्टार्टेड 2017 से, फिर हमने और रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया डीप डाउन। एंड 2022 में वी स्टार्टेड इंडियन हेम्प स्टोर, जहाँ पे हमने 40+ हेम्प कंपनीज को कोलैबोरेट करके वी स्टार्टेड द कंपनी। That was amazing of a snapshot of your entire journey till you started the Indian Ham store. Now let me understand and break it into pieces of who is Siddharth, where is he coming from, what is his real background and mindset. My intention is to understand your real mindset before you started the entrepreneurial Got it. journey. You have been a successfully placed student from your college, where you started with Flipkart, then joined Amazon, then you also worked for ITC. What made you to think in the first place that you want to start something? There is always, I would say, a slip between the cup and the sip. Yes. And that's what I want to kind of put the context here. What made you think? So go back to that journey, think about that moment, and then let me know. So I came from a family my family background is basically business only. So my father is into steel business. So उनको देखते ही बचपन से मुझे ये था कि यार मेरे को बिजनेस करना है। I was not always looking for a job. So initially जब यूपीएस में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी सप्लाई चेन में, आई वॉज लाइक कि आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है एंड हाउ वी कैन टेक दिस थिंग फॉरवर्ड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस थ्रू दैट। तो उसके बाद जब मैंने फ्लिपकार्ट में जॉब करी, आई केम टू नो द एंटायर कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री काम कैसे करती है इन द बैक एंड साइड। फ्रंट एंड पे तो हम लोगों ने देखा होता है कि हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, पर बैक एंड पे नॉलेज मुझे वहाँ से आई जब मैंने So were you already decided by Yes, then कि yes. मुझे कुछ तो बड़ा करना है, Yes. ई-कॉमर्स में ही करना है, नहीं करना, that was ये decided? दैट वाज नॉट अ किलर चॉइस, बट Okay. इट वाज अ डेस्टिनी कि जब मुझे ई कॉमर्स के ही कंपनी से मेरा सिलेक्शन हुआ फ्लिपकार्ट। एंड आई वाज फॉन्ड ऑफ फ्लिपकार्ट बिकॉज उस टाइम फर्स्ट जो स्टार्टअप देखा गया इंडिया का, दैट वाज फ्लिपकार्ट ओनली, जो सचिन और बिनी बंसल ने स्टार्ट किया था। सो मेरी नज़र में वो कंपनी का एक अलग एक जौरा था कि लाइक आई वांट टू गो दिस काइंड ऑफ अ कंपनी, बट डेस्टिनी मेड इट हैपन एंड आई वेंट टू फ्लिपकार्ट। सो वहाँ पे मुझे एक्चुअल में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का क्रक्स पता चला कि कैसे होता है, कैसे वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, डिलीवरी कैसे होती है, बैक एंड पे ऑपरेशन टीम कैसे काम करती है। सो हम लोगों ने जब ट्रेडिशनल बिजनेस तो हम लोगों ने देखे हैं कि बहुत एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड 2 या 3 लोग होते हैं जो पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं। वेयर एज जब हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, जहाँ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, जहाँ हज़ारों मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं एंड हर एक का एक डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक अलग नॉलेज मिली कि लाइक ऐसी भी चीज़ें बड़ी स्केल पे की जा सकती है। देन उसके बाद आई डिसाइडेड व्हेन आई क्विट माय जॉब, आई डिसाइडेड कि लाइक अब मेरे को जितना नॉलेज गेन करना था मेरा हो गया, जितना मुझे कॉर्पोरेट से एक्सपीरियंस चाहिए था उतना हो गया। नाउ इट्स टाइम कि आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, बिकॉज जितनी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा उतनी जल्दी ही हम लोग उस चीज़ को आगे लेके जा पाएंगे। So let me ask you one thing here. While you were thinking to start a business, what were the other options that you explored? I'm sure
the last one was obviously the hemp products. But before that, did you even explore, or it was just destiny that you landed I to? explored multiple business. Basically, it was not by choice, it was by destiny. So basically, मेरे mom dad travel बहुत करते थे, so they always took me to the places like मुरादाबाद वगैरह वो सब जगह भी, जहाँ खासकर आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बहुत बनते थे। तो हमने जैसे हम फिरोजाबाद से भी हमारी काफ़ी फैमिली बिलोंग करती है, तो फिरोजाबाद में भी हम जाते थे, वहाँ पे कांच का काम बहुत होता है। तो आई सी यूज टू सी द लैम्प्स, मोज़ैक के लैम्प्स मिलते थे वहाँ पे। तो मैं सोचता था यार ये इतनी क्रिएटिव चीज़ है, लोग बाहर एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड एंड इतना बड़ा मार्केट इसका बन सकता है, इट्स ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और पूरे हैंड आर्टिसंस बनाते हैं उसको। सो उस टाइम जब मैं हैम्प का स्टार्ट किया था, जब मैंने कसौल का स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो उसी टाइम पे जब मैंने ये सोचा कि यार इसको और रिसर्च करके देन इम्प्लीमेंट करेंगे हैम्प वाला आइडिया, उस टाइम पे आई वॉज लाइक कि कुछ बिजनेस तो करना ही है। सो आई स्टार्टेड पेलिकन क्राफ्ट्स, जिसमें मैंने इन्हीं सारे आर्टिस्ट को कनेक्ट करके होम डेकोर प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट किया, थ्रू ऑनलाइन एज वेल एज थ्रू ऑफलाइन। तो काफ़ी सारे होटल इंडस्ट्री से कनेक्ट किया, आर्किटेक्ट से कनेक्ट किया, इंटीरियर डिज़ाइनर से कनेक्ट किया, एंड आई वुड मेक श्योर कि लाइक जितने भी आर्टिस्ट वहाँ पे काम करते हैं मैं उनसे डायरेक्टली खरीदूँ, रादर देन किसी बड़े एक ग्रुप से खरीदूँ। उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आर्टिस्ट के पास जाऊँ और उनसे बोलूँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मैं ये आपको बेचूंगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास 40 से 50 आर्टिसंस हो गए थे फ्रॉम द यूपी स्टेट। तो वो लैम्प्स बना रहे थे, एंटिक्स बना रहे थे, अलग अलग आइटम्स जो कि होटल इंडस्ट्री में और काफ़ी जगह यूज़ होते थे। तो वो एक चीज़ मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया थ्रू अमेजोन, थ्रू इट्सी। तो हम लोगों ने यूएस भी इवन बेचा उससे। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल गया था दैट वेंट टू द हॉलीवुड। Wow. यस। और वो मोज़ैक लैम्प उनको इतना पसंद आया कि दे ऑर्डर्ड फ्यू मोर। तो उसी से हमारी एक शुरुआत हुई कि हाँ ना वी कैन प्लान फॉर इंटरनेशनल ऑल्सो। एंड हमारा इस तरीके से पेलिकन का इंटरनेशनल ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे कंपेयर टू द लोकल। पर लोकल में हमारा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा चल रहा था, तो रेडिसन ग्रुप उनको हम सप्लाई करने लगे, काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स थे बॉम्बे में, उनको सप्लाई करने लगे। तो उससे हमारा अच्छा मार्केट हो गया। बट दैट वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल बिजनेस सॉर्ट ऑफ, बिकॉज उसको आप स्टार्टअप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो प्रॉपर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल था, जहाँ पे मैं एक आर्टिस्ट को बोलता हूँ कि मेरे लिए प्रोडक्ट बना के रखो एंड आई विल सेल इट ऑनलाइन। ठीक है, भले वो मेड टू ऑर्डर भी हो। सो दैट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अ स्केलेबल बिजनेस व्हाट आई सी। तो वहाँ पे मेरे साथ एक चैलेंज ये था कि आई वॉज हैविंग ए लिमिटेड फंड, क्योंकि मैं आई लेफ्ट माई जॉब। सो मुझे अपनी जो सेविंग थी मैं उसी को यूज़ करके आगे कर रहा था काम। तो जब हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़े, हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि यार इसमें इन्वेंट्री की बहुत ज़रूरत है, एंड वो सब चीज़ें स्टॉक करना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हमने 2 3 से 4 साल उसको स्केल किया, एंड देन फिर फाइनली डिसाइड किया कि अब हेम की पॉलिसी ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है। नाउ अगेन वी नीड टू स्टार्ट द हेम बिजनेस। Okay, let me understand a couple of things in your journey of setting up your Pelican Arts. What what were the kind of conversations you had with your customers, with your vendors? Like एकदम crude, like बिल्कुल depth में जाके मेरे को वो चीज़ सुननी है. Like you're actually talking to a customer, you're actually talking to a vendor, or for that matter, let me take an example that you're actually dealing with Redison. तो how that even happened in the first place? सो हम रेडिसन जो हम लोग को मिला था वो क्लाइंट, वो हमारे आर्किटेक्ट के थ्रू मिला था, जो बेसिकली रेडिसन ग्रुप होटल्स के लिए काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। सो उनका काम ही ये था कि रेगुलर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, एंड इवेंट्स में आप जानते ही हैं कि लाइट्स लगती है, लैंप्स लगते हैं, बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगते हैं जो कि डेकोरेशन में काम आते हैं। तो हमारा उनसे काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया, एंड हमने उनसे डीलिंग करना स्टार्ट किया। इनिशियली वो और भी क्लाइंट्स के लिए हमें ऑर्डर देते थे, पर रेडिसन वॉज द मेन क्लाइंट फॉर देम। तो जब हमने रेडिसन के लिए पूरा उनका रूफ टॉप डिज़ाइन किया, कि उनका पूरा टेरेस था और टेरेस पे एक बहुत अच्छा पार्टी होने वाला था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि स्पेशली मुझे अरेबिक डिज़ाइन चाहिए, पूरा अरेबियन स्टाइल का। तो हमने उनकी हेल्प करी डिज़ाइनिंग में, उसमें कि डिज़ाइनिंग भी हम करेंगे, प्रोडक्ट्स भी हम लगाएंगे, आप बस हमारे ऊपर छोड़ दो ये चीज़, एंड दे ट्रस्टेड अस। तो उस हिसाब से हमारा रेडिसन ऑनबोर्ड हो गया। दे लव के लाइक व्हाट वी डिड। हमने पूरा उनका ऊपर का रूफटॉप का डिज़ाइनिंग इतनी एक्सीलेंट कर दी कि उनको सब बहुत खुशी हुए। तो उस तरीके से हमारा क्लाइंटेज और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि हमने एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था कि यू आस्क मी ओनली द प्रोडक्ट बट आई विल गिव यू द सर्विस एज वेल। मैं आपको पूरा लगा के फिटिंग एंड फिनिशिंग करके हर चीज़ करके दूंगा, एंड तो उससे हमारे एक एक अच्छा क्लाइंटेज बना। So
Pelican was majorly into providing lamps, Lamps, antiques, yes. right? But help me understand, how did you even in the first place decided that I will also give you service? Did you already had a kind So of I was having a very creative mind always कि मुझे creativity करना बहुत पसंद है कि like you know wherever something is placed या कोई भी अगर पेड़ भी कहीं लगा हुआ है तो मुझे पता है कि उसको कैसे ब्यूटिफाई करना है, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि ऑडियंस को पसंद है. सो आई वॉज ऑलवेज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको पता है कि कस्टमर सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या चाहता है, उसको किस टाइप की चीज़ें चाहिए. सो मुझे एनालाइज हो गया कि इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट पर उनको यूज़ करना नहीं आता वो प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो आई हैव एक्सपर्टाइज कि लाइक मैंने अगर प्रोडक्ट बनवाए हैं अपने लिए किसी कस्टमर्स के लिए तो मुझे पता है कि उसको यूज़ भी किस तरीके से करना है. तो आई सजेस्ट देम, इवन मैं ये तक भी बताता था उनको कि कौन सा बल्ब यूज़ करना है उसके अंदर, ठीक है, वेदर यू हैव टू यूज़ फिलामेंट बल्ब और एलईडी बल्ब, ठीक है. that's deep. तो मैं उतने डीप में जाता था टू मेक श्योर कि उनको जो एम्बियंस वो क्रिएट करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट एम्बियंस क्रिएट हो. तो दैट दे लाइक इट कि मैं पर्सनली उस चीज़ को बहुत इन्वॉल्व रहता था एंड इसी कारण से इतने अच्छे अच्छे क्लाइंटेज बने हमारे. इवन बॉम्बे में भी एक बहुत बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है करीम्स लोखंड वाला, उसका भी हम लोगों ने एक आर्किटेक्ट के थ्रू इंटीरियर करवाया था. वहाँ पे भी अभी भी जितने भी लैंप्स लगे हुए हैं, लाइटिंग्स लगे हैं, वो सब हमारे यहाँ के ही है. सो उनको, वो भी एक बॉलीवुड स्टार का ही है एंड उनको बहुत अच्छा लगा था यू नो व्हेन दे सॉ एवरीथिंग. तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स हमेशा खुश रहें एंड दे गेट व्हाट दे पे फॉर इट. सो वी मेक श्योर कि अगर आप खरीद रहे हो तो आफ्टर सर्विस भी आपको हम देंगे 100%. वो भी ऐसी देंगे कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड यू विल बी मेकिंग लाइक श्योर कि मेरी जो चीज़ है वो परफेक्ट दिखे. Awesome. I'm sure this journey has been more exciting, what you can explain. But I want to know a little more about your supporters in the journey, like the ones who supported you by incubating you. I believe you have been incubated with Yes. IIT Ropar, Startup Uttarakhand, and I think UPS also. Yes. So, can you tell me what part did they play in your journey? So right now in Indian AMSO we have 7 to 8 incubators with us. One is the UPS where we started our journey, runway incubator. Then later on the stage we got Startup Uttarakhand after Startup India, and then we got IIT Ropar, iHub Awadh, and then Razorpay, and then IKEA Foundation, Visa Foundation, and now TCS. Wonderful. So, So- you are part of incubation in all these incubators. All these incubators. Oh God. So that is a kind of that was a strategic decision for us because we want to make sure that we should have a great network while building this industry, because as this industry is very new for India and people are still not educated that much कि like अभी भी लोग भांग को सिर्फ एक ड्रग के फॉर्म में देखते हैं. तो कहीं ना कहीं उनको एजुकेट करने के लिए आई नीड टू क्रिएट दैट नेटवर्क और जहाँ से हम एजुकेट कर सके लोगों को. एंड दैट्स द रीज़न हम लोगों ने इतने इंक्यूबेटर से कनेक्ट किया एंड दे हेल्प्ड अस अ लॉट. लाइक आई कैन गिव यू एग्जांपल, जब मैं Razorpay से कनेक्ट हुआ, Razorpay राइस, तो दे मेट मी अमन गुप्ता, तो मैं उनके थ्रू अमन गुप्ता से भी मिला. आई मेट दिस जोमेटो के को फाउंडर से मिला, राहुल से. आई मेट बेला वीटर के फाउंडर से. सो इन जब लोगों से मिलना मेरा हो पाया वो सिर्फ Razorpay के थ्रू ही हो पाया. सिमिलरली IIT रोपर जब हमारे लाइफ में आया कि लाइक यू नो व्हेन दे लाइक अवर आइडिया एंड हमने IIT रोपर को पिच किया, तो वहाँ से हम लोग को फर्स्ट फंडिंग रिसीव हुई एंड दैट क्रिएट्स द क्रेडिबिलिटी इन अवर बिजनेस कि हमने IIT से पैसा रेज किया एंड देन वी स्टार्टेड द कंपनी. बिकॉज आई एम नॉट एन इंजीनियर एंड आई ऑलवेज थॉट कि मैं कभी IIT जाऊँगा, बट लेकिन कभी सोचा नहीं था कि IIT इन्वेस्ट करेगा हमारी कंपनी में. That is amazing. That Yes. that is some, I would say, a reward for a non-techie Yes. getting funding from one of the most prestigious tech Absolutely. education organizations in India. I want to go deeper into that piece a little and try to understand when you say incubated by these so-called organizations. Can you, in short, explain us what incubation is and how did they help you? So incubation is basically a kind of a cohorts. So basically these are kind of the ventures. They came from a traditional organizations. Can be college also, can be a big company also. So mostly what they do is that every organization has a CSR fund now. So corporates are now utilizing the CSR fund to create a kind of incubator sort of model where they can have onboarding the startups
and startups can utilize their entire asset as well as their network to build their entire infrastructure. सो इस केस में दोनों कंपनी को भी फ़ायदा होता है और साथ में स्टार्टअप को भी फ़ायदा होता है. एक तो स्टार्टअप को एक रेडीमेड नेटवर्क मिल जाता है जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट से मिला होता है, एंड साथ साथ उसको जो गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए होती है इनिशियल लेवल पे वो इनके थ्रू मिल जाती है, प्लस फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज दे ऑलरेडी कनेक्टेड विद लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. सो रेजर पे के साथ हमारे साथ ऐसी कोलैबोरेशन हुआ, IIT के साथ हमारा ऐसी कोलैबोरेशन हुआ जहाँ पे इन्होंने हमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट किया, एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस. Like when you enter into IIT network, you will get access of all IIT network. So now we keep on visiting across IITs and IIMs, जहाँ पे हम जाके pitching करते हैं. We spoke to a lot of investors, we spoke to a lot of students, and we educate also to them. Because our primary motive was always starting from Indian Hamster, कि like we need to educate first and then we need to sell the products. सो हम लोगों ने स्टार्टिंग कॉलेज से जानबूझ के की थी कि लाइक UPS में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में हमने फर्स्ट ऑफिस इसीलिए सेटअप किया था टू मेक श्योर वी एंगेज विद स्टूडेंट्स. अगर हम स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके आएंगे, वी हायर देम एज ए इंटर्न और इधर वी टेक द क्लासेस जैसे हम नॉर्मल वर्कशॉप्स कराते हैं, तो उससे ही वो एजुकेट होंगे एंड देन इट विल गेट मल्टीप्लाई. दे विल टॉक टू योर पेरेंट्स, दे विल टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, एंड इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी. The positive circulation of that circulation. information, because Yes. again, as you said, hemp or bhang Yes. is always treated Because- as बिकॉज अगर आप भांग का कंजप्शन देखो तो भांग का कंजप्शन इज मैक्सिमम इनटू द यूथ. ठीक है, आज कोई ना कोई यंगस्टर्स कभी ना कभी कैनबिस कंज्यूम किया होगा उसने. ठीक है, इधर इन स्कूल्स कॉलेजेस कहीं ना कहीं उसका इंट्रैक्शन हुआ होगा. सो आई थिंक दैट इज़ अ रूट कॉज जहाँ से ही उसका शुरुआत होनी चाहिए उसको ठीक करने की. तो वो रूट कॉज हमने पकड़ी और उसी को ठीक करना स्टार्ट किया, एंड वहीं से इंडस्ट्री बिल्डअप करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ अदर इंक्यूबेटर्स एज वेल. lovely. Okay, one last question on this, which is about a moment that you felt like giving up. Was there such a moment, or you were kind of bold enough, strong enough to sail through? There was many moments which came into my life when I thought कि like I stepped into the wrong direction or either I step into the wrong product, because ये हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी ऐसी है कि दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट एग्जिस्टेड इन इंडिया, एंड मतलब पुराने ज़माने में थी ये इंडस्ट्री बट आज के टाइम में इसको टैबू ही माना जाता है. तो इनिशियली बहुत सारा आया, फेलियर्स आए कि प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलिंग वेल और कहीं से भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है. एंड बिकॉज इनिशियली 1 साल हमने बूटस्ट्रैप किया था कम्प्लीटली, एंड आई वाज केम विद द सेविंग ऑफ 6 months कि मैं 6 महीने तक तो काम चला लूँगा. ठीक है, बट 6 महीने के बाद आई डोंट हैव मनी, आई नीड टू फिगर आउट कि मैं कैसे करूँगा. ठीक है, बट मैं वही विजन लेके मैं आगे चलता गया, एंड 6 महीने तक हो गया, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, एंड आफ्टर 6 month भी मतलब हम लोग क्रेडिट कार्ड पे जी रहे थे. एक तरीके से हमारा पूरा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसिव हो रहा था पूरा. एंड तो उस टाइम हम लोग को लगा यार कि क्या मेरा राइट डिसीजन था, वेदर आई शुड लीव फ्लिपकार्ट और मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए था, या मैं फैमिली बिजनेस भी कर सकता था अपना. वाई आई कैन नॉट डू दैट, और मैं क्यों अपना बिजनेस के पीछे ही पड़ा हूँ. तो कहीं ना कहीं उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए थे कि सेल्फ डाउट आता है. सेल्फ डाउट आता है, बहुत डाउट आता है, सेल्फ डाउट. बट समहाउ जो मोटिवेशनल पावर थी मेरे अंदर कि लाइक कि एक उस प्लांट को लेके कि मैंने जब उसको देखा कि यार इससे 25,000 प्रोडक्ट्स बना सकते हो आप, और इससे आप मतलब इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ कर सकते हो, प्लस इससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एडवांटेज आ सकता है. अगर आप देखो तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खतरनाक हो सकता है, एंड इवन जो फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं. तो जब मैंने उसका वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा कि यार हाउ बिग कैन दिस इंडस्ट्री बी, तब मुझे लगा कि नहीं, आई कैन नॉट गिव अप, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स, देन ओनली मैं इस चीज़ में कुछ कर पाऊँगा. क्योंकि आइडिया 2017 से चल रहा था, बट इम्प्लीमेंटेशन, एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन, राइट इम्प्लीमेंटेशन 2022 में आया. तो वो जो जर्नी थी 5 साल की, वो 5 साल की जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे. पैलिकन भी था, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स भी थे कि इसको भी करना है, एंड उस द सेम टाइम के पैसा भी नहीं था. सो माइंड में 10 तरीके के थॉट होते थे कि यार ये पॉसिबल भी है करना, क्या मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है इतना, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, खुद एक इंडस्ट्री खड़ी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इंडियन हैमस्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंडियन हैमस्टर को सिर्फ एक कंपनी के तौर पे नहीं देखते हैं, हम लोग एक इकोसिस्टम की तरह देखते हैं कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग. तो वहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा वहाँ पे हर चीज़ के लिए. फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना,
हर चीज़ लोगों को कन्विंस करना इस चीज़ के लिए, बिकॉज आधे ज़्यादा लोग जब आप बताते हो कि आप भांग का बिजनेस करते हो तो लोग हंस देते हैं, ठीक है, कि यार ये क्या है, मतलब भांग का बिजनेस करते हो, क्या भांग बेचते हो? बोला हाँ भांग बेचते हैं। बोला पर इंडस्ट्रियल और मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम रिक्रिएशनल नहीं बेचते। तो वो लोगों को समझाना वो चीज़ बहुत टिपिकल थी उस टाइम। तो कहीं ना कहीं फिर भी एक माइंडसेट यही था कि करना है तो हेम का बिजनेस करना है और कुछ नहीं करना। तो वो माइंड में जो वो एक किक आया था ना, कि जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका पोटेंशियल बहुत है और करूँगा बिजनेस तो इसी में करूँगा, तब मेरे को वो हुआ कि जब भी मैं फॉल होता हूँ, जब भी मेरे को ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तब मुझे फिर वो याद आता है वो चीज़ कि करना है तो इसी में करना है। Lovely, lovely. You talked about taboo, and I'm Yes. gonna take you to that day when you actually announced this. Ke Papa, Mama, I'm gonna do a business into hemp. In brackets, it is bhang. हाँ, What was that reaction? Like, were they convinced? Were they not convinced? I want to know that entire story. दे वर नॉट अवेयर अबाउट कि लाइक इससे कुछ प्रोडक्ट बनते भी हैं। दे वर मोस्टली थिंकिंग कि यार ये तो नशे है, ये नशे के चक्कर में पड़ने वाला है, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला। एंड तो उनको जो समझाना था ना वो भी बहुत मेरे लिए टिपिकल हो गया था, बट आई कन्विंस हिम साइंटिफिकली। मैं उनको गूगल पर आर्टिकल्स दिखाता था, वीडियोस दिखाता था, यूएस और यूके की कंपनीज के भी आर्टिकल्स दिखाए उनको, तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि इससे कुछ बनाया जा सकता है। पर उन्होंने वो पूछा कि ये लीगल होगा क्या, ये इसमें कुछ लीगल कंप्लाइंस के चैलेंजेस तो नहीं है? मैंने वो सब भी पूरा पता किया था, स्टडी कर रखी थी मैंने, तो मैंने उनको वो चीज़ भी कन्विंस करी। फिर जब मैंने उनको बताया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करने की रेडी है एंड स्टार्टअप उत्तराखंड भी ऑन बोर्ड हो चुका है, तो वहाँ पे वो लोग सेटिस्फाइड हो गए कि चलो ठीक है, अब गवर्नमेंट के अंदर है तो मतलब ठीक रहेगा, कहीं इसको दिक्कत नहीं आएगी। देन दे गॉट कन्विंस्ड कि लाइक ओके। That is amazing, because most entrepreneurs I've come across Yes. in my journey, and especially the young ones, their first and foremost challenge is convincing their parents. Specifically, one, if they already have a business, यस, कि भाई अपने बिजनेस पे क्यों नहीं आ रहे हो. Two is service class parents who are like, सर्विस अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी कंपनी के साथ लगे हो, why do you want to get into this grind? So when I kind of take you back to that reflection, when you were actually convincing your parents, you said that you already did your research. I'm going to little expand that research piece only. Help me understand how you actually did research. Like Google पे गए, research मारी, ये या तो search ये किया. तो किया है, गूगल पे रिसर्च तो की थी, फिर नेपाल पे हमने रिसर्च करी। वी स्पेंड ऑलमोस्ट अ मंथ इन नेपाल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंडस्ट्री ऑल अबाउट, क्या क्या और कैसे बनता है। तो वहाँ के जो लोकल फार्म्स थे, वहाँ पे औरतें जाती थी, वहाँ से फाइबर एक्सट्रैक्ट करती थी, फिर उसको बॉईल किया जाता था, फिर बॉईल करने के बाद उसको पीट पीट के उसके फाइबर निकाले जाते थे, फिर उसको लूम में लगा के उसको उसका यार्न बनाया जाता था, एंड देन दे क्रिएटेड द फाइबर। तो ये पूरा प्रोसेस भी हमने अंडरस्टैंड किया। इवन वी वेंट टू द एम्बेसीज ऑल्सो, हम नेपाल के एम्बेसी पे भी गए, वहाँ पे भी उनसे डिस्कस किया कि अच्छा आप बताइए कि कैसा इसका चल रहा है, क्या क्या पॉलिसी आप लेके आए हो इसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट से भी बात करी, पता चला कि हाँ दे आर वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑल्सो। फिर हम लोगों ने इंडिया में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इसका करना, तो हमने गवर्नमेंट से बात करना स्टार्ट करा। पहले हम खुद जानना के सोचे कि यार खुद पॉलिसी क्या है पता तो चले। सो 2017 में उत्तराखंड की हेम्प पॉलिसी आई थी, एंड इट वॉज द फर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया, एंड उत्तराखंड अलाउज द कल्टिवेशन ऑफ हेम्प प्लांट इन द स्टेट विद दैट पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के थ्रू ही हम लोगों को एक मोटिवेशन मिला कि यार अब पॉलिसी आ गई है, नाउ गवर्नमेंट विल गोइंग टू हेल्प कि इसको प्रमोट कैसे करें, ठीक है। सो हम गवर्नमेंट के पास गए, इन द उत्तराखंड गवर्नमेंट इट सेल्फ। एज आई ऑलरेडी बिलोंग टू यूपीएस, तो मेरे को गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में भी अच्छा एक मिल गया सोर्स के लाइक वहाँ पे बात कर सकते हैं हम यूपीएस के नाम पे। तो हम लोग स्टार्टअप उत्तराखंड की टीम से बात किए, एंड वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट अभी कितना निश स्टेज पे है और अभी भी पॉलिसी पे कितना कुछ काम होना बाकी है। एंड व्हेन वी क्लोजली अंडरस्टैंड द पॉलिसी, हम लोगों ने उस पर काफ़ी सारे फ्लॉज भी निकाले, जो कि हमने इंडस्ट्रियल प्लेयर से बात करना स्टार्ट किया, बिकॉज दिस वॉज अ काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड उस टाइम हम लोगों ने यही सोचा कि एक तो नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्या किस तरीके का सप्लाई चेन है। तो वो चीज़ जब हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, तो हम लोगों ने यूएस के लोगों को अपने ऐड किया लिंक्डइन नेटवर्क पे, हम लोगों ने इंडिया के लोगों को ऐड किया लिंक्डइन पे अपने,
इस तरीके से मेरे आज 25,000 लिंक्डइन पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। वंडरफुल तो- वंडरफुल, दैट इज अमेजिंग, मुझसे भी ज्यादा है। तो ये नेटवर्क मैंने जानबूझ के बनाया टू मेक श्योर कि मैं सारे इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट हूँ पहले, क्योंकि यही लोग मुझे बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या फ्लॉ है, क्या पॉजिटिव है, और कैसे इसको लॉन्ग टर्म में आगे लेके जा सकते हैं। तो उस नेटवर्क के थ्रू ही मुझे इतना कुछ एक्सेस मिला कि आई वॉज एबल टू फॉर्म द राइट डायरेक्शन कि अब इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, एंड इस चीज़ को और हम मास स्केल पे कैसे लेके जा सकते हैं। सो देन द प्लान स्टार्टेड। हम लोगों ने फिर इंडियन हेम्प स्टोर स्टार्ट किया। वी मेक श्योर कि हम लोगों के पास जो ई कॉमर्स एक्सपीरियंस है वो यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए वी केटर द मार्केट प्लेस। एंड मार्केट प्लेस से अच्छा ये भी होता है कि मार्केट प्लेस में आप सारे कंपनीज को केटर कर रहे हो, नॉट जस्ट योर प्रोडक्ट बट यू आर केटरिंग टू अदर कंपनीज एज वेल। तो उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मार्केट प्लेस में लिस्ट हो जाते थे एंड वी स्टार्ट सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो इससे उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो अपना पैन इंडिया ग्लोबल लेवल पे अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं हेम्प का, और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, कौन सी कंपनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रही है, कैसे उनके साथ कोलैबोरेट करके वी कैन हैव अ गुड काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट से भी इंटरेक्ट करते रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मेक श्योर कि हम लोग ग्राउंड से कनेक्टेड रहें, बिकॉज अगर पॉलिसी सही नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा फॉर द इंडस्ट्री। तो वहीं पे हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, इन लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। एंड सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने वी आर एक्टिंग एज अ इंडस्ट्रियल एडवाइजर ऑल्सो फॉर द हेम्प पॉलिसी। सो इस तरीके से वहाँ पे भी हमारा नेटवर्क बना, गवर्नमेंट के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा मल्टीपल एरियाज में हमारा नेटवर्क बन गया, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन गवर्नमेंट, इन इंडस्ट्रीज। अब ये जब तीनों साथ में आ गए तब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। और ये कई तरीके से ये एक बहुत राइट स्ट्रैटेजी की तरह काम किया। Wonderful, wonderful. You kind of answered most of my questions about strategy, building through, and establishing your overall ecosystem. Now, let me ask you a couple of questions around what were the biggest challenges. So, this is from the outline that you have mentioned that you established a connection and a network in the industry, in the government sector, which is a hard nut to crack. And then you also, again, thankfully you had a young mind, you were already connected with a lot of student fraternity. The most important piece is the challenges. So give me a couple of challenges you faced in all these three networks and how did you overcome them? सो सबसे मेजर चैलेंज तो फंड का था कि वेयर वी डोंट हैव फंड्स एंड वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व रॉन्ग पर्सन विद अस, बिकॉज जब हम पैलिकन स्टार्ट किए थे तो पैलिकन में भी हमारे पास 3-4 फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स थे। तो उस टाइम भी, और दोज आर फ्रेंड्स ओनली, बट सबके अपने अपने विजन होते हैं, सबके अपने अपनी इच्छाएं होती है। सो वी गॉट स्प्लिटेड। एक फ्रेंड दुबई चला गया, एक फ्रेंड का ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस था तो वो अलग हो गया। अल्टीमेटली पैलिकन में भी हम लोग अकेले बच गए। सो आई डोंट वांट टू रिपीट So दैट। when you say हम लोग अकेले बच गए, how many people actually left? लाइक 2 लोग, अच्छा। हम 2 लोग अकेले बच गए। सो देन वी डिसाइडेड कि यार अब हेम्प में ये वो गलती नहीं करनी। अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इंडियन हेम्प स्टोर, हमें वो गलती नहीं करनी। वी वांट टू इन्वॉल्व द राइट पर्सन विद अस, जिसका भी पैशन हेम्प हो, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न हमने इनिशियली जो अपनी टीम थी वो बहुत ही निश लेवल पे रखी। एंड आज के टाइम में भी हम लोग बहुत ही लीन मॉडल पे काम करते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग ही उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एंड वी मेक श्योर कि वो क्वालिटी दे वो चीज़ और पूरा टाइम दे उसके साथ साथ। So if I may ask, what is your team size and who does what? So we have a 3 full-time employees and we have 35 interns with us. So right now full-time हम लोगों ने काम रखा because to make sure कि हम operational cost ज़्यादा ना bear करें। एंड साथ साथ हम लोगों का इंटर्नशिप्स करने का ये रीज़न था कि उससे एजुकेशन भी आएगा, अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, प्लस स्टूडेंट्स विल स्टार्ट लर्निंग एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन हेम्प बिजनेसेस इन इंडिया। एंड यही कारण से आज कुछ मेरे इंटर्न्स ने खुद की हेम्प कंपनीज भी स्टार्ट कर दी है। That is amazing. So basically, from internship directly to an entrepreneurial journey. एंटरप्रेन्योर जर्नी। Lovely. तो That is interesting. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, व्हेन दे आई सी देम, बिकॉज व्हेनेवर आई आस्क माय इंटर्न्स के व्हाई यू वांट टू वर्क विद अस, तो ही सेड कि सर आई वांट टू वर्क विद द स्टार्टअप और आपका स्टार्टअप मुझे बहुत पैशनेट लगता है, देन दैट्स व्हाई आई वाज वांट टू जॉइन। एंड अगर कोई भी मुझे बोलता है कि आई वांट टू जॉइन फॉर अ मनी,
आई सेड डोंट ज्वाइन, बिकॉज मनी और इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए अगर करना है, इसके लिए जॉब के लिए करना है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, सिस्को चले जाओ, दे आर मैनी कंपनीज हु कैन हायर यू, ठीक है, बट मेरे यहाँ आना है तो आई एम नॉट टेकिंग यू एज एन एम्प्लॉय, आई एम टेकिंग यू एज अ पर्सन जो कि मेरे साथ सीखना चाहता है, और इफ़ अगर तुम मेरे से सीख के कुछ कर सकते हो लाइफ में, दैट इज़ द प्लस पॉइंट फॉर मी, अदरवाइज डोंट वर्क फॉर मी, मेरे से बड़ी बड़ी बहुत कंपनीज हैं, उनके पास जाके काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी खुद की जर्नी में भी देखा कि जब हम लोग खुद इंटर्नशिप करते थे, नोबडी पेज अटेंशन, ठीक है, हम इंटर्नशिप में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती थी, बट हमारे जब हम अपनी इंडस्ट्री में हम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की तो हमने यही सोचा कि नहीं, हम अपने बच्चों को फ्रीडम भी देंगे कि बेटा तुम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, तुम मार्केटिंग भी देखो, तुम सोशल मीडिया भी देखो, तुम ऑपरेशंस भी देखो, एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, थिंक एज ए एंटरप्रेन्योर माइंड, ठीक है, तुम अपने आप को एम्प्लॉय मत समझो कंपनी का, तुम ये समझो कि और क्या बेटर कर सकते हैं, कंपनी के लिए भी क्या बेटर कर सकते हैं, खुद के लिए भी क्या बेटर कर सकते हैं स्किल वाइज, ठीक है, एंड दैट्स वाई उनको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व करके हम लोग को स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं उनकी, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि हाँ कल को इफ़ दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जब कोई एक फाउंडर होता है तो वो एक तरीके से वन मैन आर्मी होता है जिसको सब कुछ करना पड़ता True है, that. ऑपरेशंस भी वही करेगा, मार्केटिंग भी वही करेगा, सेल्स भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा, तो इफ़ दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस तो उनको भी सब कुछ करना पड़ेगा फ्रॉम द डे वन, सो वो डे वन से ट्रेनिंग हम अपने इंटर्न्स को देते ही हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है टू मेक द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप ऑल्सो, तो इसीलिए आज इंडियन हैम स्टोर की फॉलोइंग बहुत अच्छी है कि लाइक यू नो पीपल लव वर्किंग विद अस, एंड लास्ट ईयर अभी इसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग गए थे फॉर हायरिंग फॉर मिरांडा हाउस से, एंड अनफॉर्चुनेटली हम मिरांडा हाउस उस दिन जाने वाले थे पर जा नहीं पाए, सो दे आस्क अस कि नो डोंट वरी, हम लोग वहाँ पे 2 इंटर्न्स बिठा देते हैं एंड दे विल टेक द गूगल फॉर्म, उस पर वो एप्लीकेशन ले लेंगे, हमारे बिना गए भी हमारे पास 78 एप्लीकेशंस आई थी। That is amazing. So I'm sure people are loving you, your product, Yes. and of course हमारे the system you are creating. यस हमारे पास 78 एप्लीकेशन आई थी, एंड उसमें से जब हमने शॉर्ट लिस्टिंग करी ऑलमोस्ट 85% आर वेरी एक्सेलेंट, मतलब 85% आर लाइक बियॉन्ड टॉपर्स, मतलब क्रेडिबिलिटी मतलब उनकी अमेजिंग थी, एंड तो वो चीज़ जो हमने बिल्डअप करी विद द एटमॉस्फियर, विद द काइंड ऑफ थिंग्स वी प्लेस इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे हमें बहुत हेल्प हुई टू नर्चर दैट, एंड कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप फाउंडर को आई बिलीव उसको ग्राउंड से बहुत कनेक्ट रहना चाहिए इन चीज़ों में खासकर, बिकॉज इनिशियली पैसा इतना नहीं होता है एंड यू कैन नॉट स्टिक योर एम्प्लॉयज़ विद द मनी, क्योंकि जहाँ कोई 10 पैसा ज़्यादा दे देगा वो एम्प्लॉय वहाँ चला जाएगा, बट इफ़ ही लव्स वर्किंग विथ यू देन ही विल वर्क, भले कुछ कम पैसे भी होंगे तो भी वो काम कर लेगा, सो दैट इज़ वॉट वी। Okay, let me ask you another question about the hemp powered economy. How do you look at it? What are your views around hemp being forming a full fledged economy? So this is a $8 billion industry across the world. 8 billion. $8 billion. Wow. And in India, it is still in like 500 to 1000 crores. So इंडिया में अभी भी इस चीज़ की इंडस्ट्री बढ़ रही है, but globally it's huge. And China is one of the largest producer. Then we come to Canada, Europe. These are one of the largest producers. US. So यहाँ पे multiple products बनाए जा रहे हैं इसके. And इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा शेयर आ चुका है आज के टाइम में, जहाँ पे इवन हम टेक्सटाइल में देख रहे हैं कि पीपल आर नॉट यूजिंग कॉटन एंड लिनन एंड दे आर स्विचिंग टू हेम्प फैब्रिक्स, एंड उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि बिकॉज एक तो कॉटन के प्रोडक्शन में आपको पानी बहुत चाहिए होता है, एंड हेम्प रिक्वायर्स 50% लेस वाटर देन कॉटन, तो अगर आप हेम्प का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको 50% कम पानी चाहिए, एंड दैट टू विदाउट फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, तो कॉटन प्रोडक्शन में बिकॉज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बहुत लगते हैं तो वहाँ पे आपको वो भी नहीं डालना, so your entire raw material is organic, so the final product will also be organic, so कहीं ना कहीं एक sustainability aspect से अगर देखा जाए, Of course. this is a perfect material, and plus it's an insulated fabric, सर्दी के टाइम आपको गर्म रखेगा, गर्मी के टाइम आपको ठंडा रखेगा, with every wash it will get softer and softer, plus life भी linen and cotton से it's almost twice and thrice, so अगर आप 140 वॉश आपकी टी शर्ट चलती है तो इसकी 280 वॉश चलेगी टी शर्ट्स, तो मतलब काफ़ी ड्यूरेबिलिटी है, सब कुछ सारा चीज़ बढ़िया है, एंड दैट्स द रीज़न यूरोपियन मार्केट्स को काफ़ी अपना रहा है। व्हेन आई वेंट टू बर्लिन आई इवन सॉ हेम्प म्यूजियम एज वेल, ठीक है, बर्लिन में हेम्प का म्यूजियम भी बना हुआ है, सो वहाँ पे हेम्प के बने हुए हर एक प्रोडक्ट रखे हुए थे, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो शैम्पूज हो, चाहे वो फाइबर्स हो, इवन गाड़ियों के पार्ट्स भी रखे हुए थे। Is it possible? Yes, so Henry Ford was the first one
जिन्होंने हैम की कार बनाई थी, एंड दैट वाज इन लेट 90s। एंड उस टाइम वो कार स्टील से दुगना मजबूत थी। तो वो जब उन्होंने वो टेस्टिंग की थी उस गाड़ी को, तो वो गाड़ी को हैमर से मारा था उन्होंने उसके डोर को, और उसके डोर पे डेंट नहीं आया। इवन द एंटायर फ्यूल ऑफ दैट कार इज ऑल्सो मेड फ्रॉम हैम। जो इथेनॉल बना था उसका, वो भी हैम से ही बना था। सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशनरी जो उन्होंने किया था हैम के थ्रू। एंड फिर उसके बाद अभी रिसेंटली पॉश ने भी उससे कार बनाई है। GT करके कार है पॉश की, जो हैम से ही बनी हुई है। सो द जो उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है बॉडी का, गाड़ी का, वो पूरा हैम से बन सकता है, हैम के फाइबर से बन सकता है, विच कैन बी फार मोर बेटर देन स्टील एंड एनी अदर प्रोडक्ट। एंड स्टील हमें जानते हैं, स्टील इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, स्टील को बनाने के लिए बहुत पॉल्यूशन लगता है। सो कहीं ना कहीं दिस इज काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशनरी मटेरियल जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिसिनल एडवांटेज, इसकी मेडिसिन कैंसर ट्रीटमेंट, अर्थराइटिस, एपिलेप्सी, साइटिका, ऐसी क्रॉनिक डिसीजेज में काम आ रही हैं, जहाँ पे एलोपैथिक से लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज को रिकमेंड कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। और इसके इफेक्ट्स भी बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 95% आर गेटिंग क्योर ऑफ इट। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स आ रहे हैं अब। एंड सबसे पहले जब इसके ऊपर मेडिसिन की टेस्टिंग हुई थी तो पेट्स के ऊपर हुई थी। तो हम जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स का एक मेथड होता है कि पहले रैट, फिर उसके बाद रैबिट, एंड देन ह्यूमन ट्रायल्स। तो जो रैट पे टेस्टिंग हुई पॉजिटिव आया, जब डॉग्स पे टेस्टिंग हुई 100% पॉजिटिव आया। तो इसीलिए आज पेट फूड आइटम्स, पेट इंडस्ट्री भी इसको काफ़ी अपना रही है। इवन जो बेसिकली वो होते हैं, आपके फिट्स आते हैं पेट्स को कई बार, तो वो फिट्स भी CBD ऑयल के थ्रू ठीक हो सकते हैं। That's amazing. Yes. So now I understand your passion for those 25,000 plus products. Yes. Because practically, if I would have another day to cover your entire story, I'm sure I would get a lot of products for my personal idea also. And every product has a specialty. अगर आप हैम का कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, उसकी अपने आप में एक स्पेशलिटी है। इमेजिन पेपर, ठीक है, अगर मैं हैम से पेपर प्रोड्यूस करता हूँ, इट रिक्वायर्स लेस वाटर, ठीक है, प्लस 4 एकड़ का जो नॉर्मल फॉरेस्ट में काटूंगा वो पेपर बनाने के लिए, मुझे सिर्फ 1 एकड़ का हैम चाहिए उसके लिए। सो इमेजिन मैं कितना बड़ा इकोसिस्टम बचा रहा हूँ, प्लस मैं रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा हूँ राइट वे में, वो भी सिर्फ 4 महीने का। आप 100 साल के पेड़ काटते हो पेपर बनाने के लिए, ये सिर्फ 4 महीने की हैम की खेती से बन सकता है। My goodness. So now I have a question, though I kind of have gotten the answer already, but I want you to quote it for me. What does success looks like for you when you see yourself after maybe 5 years, 10 years? Success is for me like the kind of industry what I am. If I'm able to make understand people that what is the right use of it, and how this can be benefiting as a economical wise, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर मी। और मुझे उससे ज़्यादा मोटिवेशन किसी चीज़ से नहीं आ सकता कि जब अपने आप में ही हमने उस इंडस्ट्री के लोगों का नज़रिया बदल दिया कि पहले लोग नशा के तौर पर समझते थे, आज उसको इंडस्ट्री के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो नज़रिया बदलने की वो बारी आती है, तो उसमें ही एक मोटिवेशन छुपा हुआ है कि इंडियन हेम्प स्टोर ने आज लोगों का नज़रिया बदला है इस भांग के पेड़ के प्रति। तो वो अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन फील होता है कि हम लोगों ने एटलीस्ट कुछ किया है इस जर्नी में। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, हम इतना एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं इंडिया की इकनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आज ये इंडस्ट्री छोटी है, पर कल जब ये बड़ी होगी तो यही इंडस्ट्री आपको लाखों का एम्प्लॉयमेंट देगी। जब हम AI का देख रहे हैं कि AI कितना एडवांस होता जा रहा है एंड उससे एम्प्लॉयमेंट कितना कम होता जा रहा है, तो हमें नई इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी, तभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगा। पुरानी इंडस्ट्रीज आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, ओनली द न्यू इंडस्ट्रीज कैन कम विद द एम्प्लॉयमेंट पार्ट। तो वहाँ पे अगर मैं हेम्प इंडस्ट्री देखूँ, जो कि इतनी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है, जहाँ फार्मर से लेकर एक एंटरप्रेन्योर से लेकर एक छोटा रिटेलर से लेकर हर कोई इसका पार्ट बन सकता है, तो वहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे उससे हम इकोनॉमी में बहुत कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, उससे हमको जॉब भी बहुत कुछ मिलेगी। Wow. I have a very tricky question. So think before you answer is, if you get a chance to get acquired, what are your thoughts? Or whom do you think could acquire you? एक्विजिशन का हमने अभी तक नहीं सोचा है, अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा है। एंड ना हम लोग का कभी स्ट्रैटेजी में ये रहा कि Merger? वी नीड टू गेट एक्वायर, वी नीड टू नॉट मर्जर ऑल्सो। हम लोग को मर्जर भी नहीं करना, पर हम मर्जर से ज़्यादा हम कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं
कि if we can collaborate with a good company who can help us in building this organization and building this entire industry in India, then definitely we are good to go. Because वही चीज़ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एक्वायर करने के लिए अगर हमने कंपनी खोली होती तो वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाता. बिकॉज जो ये मोटिवेशन आया है हमारे अंदर, दैट इज़ इनर. और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये इससे नहीं सॉल्व हो पाएगा कि हम लोगों ने $1 बिलियन कंपनी बना ली और अब खूब करोड़पति बन गए और बस अब खत्म हो गया सब कुछ. ये तब तक चलेगा जब तक ये इंडस्ट्री को हम सक्सेसफुली देख नहीं लेंगे. ठीक है, जब तक इंडिया में इसका बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट नहीं बन जाएगा, जब तक इंडिया नहीं बोलेगा कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है हेम्प इंडस्ट्री में, तब तक वो शांति नहीं मिलेगी. Wonderful. I think that's what I call true visionary leadership. Now, let me come to the most interesting part of our episode is the rapid fire round. I will ask you a couple of questions and you're not required to think at all about it. Straight away, what is the first answer you think about? Just straight away give me that. None. One hemp myth you would want to bust forever. That's a drug. Your favorite hemp product right now. Medicine. What keeps you going when it gets really, really tough? My motivation towards the end goal. A book or film that changed how you think. I don't read books more. तो मुझे इसका थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, but I read that Secrets. I love that. If not hemp, what would you be building? I would be a pilot if I was not building hemp. Lovely, lovely. So that was a wonderful episode, and I think the kind of energy I wanted for the first episode in this series, you really made it happen. Thank you so much. Thank you so much, Siddharth, for coming on the show. Thank you. And we will definitely connect again to have another episode. Sure, I would love to have another podcast with you. Lovely.